Hola guys, I hope all of you are doing great. My name is Manika and welcome back to my YouTube channel Legaltopia. So guys, from quite some time you all were worried about United Nations current affairs, so I decided to come up with this video, United Nations current affairs MCQ. And we all know how important United Nations is. So if you have missed the United Nations explanation part 1, part 2 and United Nations GK video, then you can do the same. You can watch the same. The link is in the description and I'm quite sure that it would be very helpful to you. And if you have not subscribed to my channel, then you can do the same. Like tab karna, video pasand aaye, samajh aaye, useful lage to. And without further ado, let's get started. United Nations Current Affairs 2021-2022. Question number 1. India is chairing which of the following committee of United Nations Security Council? Your options are A. Counter-Terrorism Committee, B. Taliban Sanction Committee, C. Libyan Sanction Committee या फिर D. All of the above. So the right answer would be all of the above. Most of you must be knowing it. So इन तीनों ही committees का नाम अच्छे से याद रखना. Moving ahead to question 2. Dash Summit organized by France, UN and World Bank in 2021 Paris. तो कौन सी ऐसी summit थी? One Earth for All Summit, One Planet Summit, Earth and Us Summit या We and Our Planet Summit. So the right answer is One Planet Summit. Okay, and its theme was Let's Act Together for Nature. Let's act together for nature. Okay, moving to question 3. Present UN General Assembly President is Volkan Bozkır, Abdullah Shahid, Trygve Lie या फिर Antonio Guterres. So the right answer would be Abdullah Shahid from Maldives. अच्छा, ये भी आ सकता है कि जीके के रिस्पेक्ट में कि इनके प्रेसिडेंट को वोट एंड अपॉइंट कौन करता है, तो दैट वुड बी जनरल असेंबली. कितने टेन्योर के लिए करता है, कितने ईयर्स के लिए करता है, तो दैट वुड बी 1 ईयर. ओके, सो दीज आर क्वाइट सिंपल क्वेश्चन बट यू नीड टू रिमेंबर दीज. अच्छा जी, फर्स्ट यूएन प्रेसिडेंट कौन थे? पॉल हेनरी स्पार्क. पॉल हेनरी स्पार्क. अच्छा, एंटोनियो गटरेस अभी कौन है? ये अभी आगे क्वेश्चन आएगा भी. लेट्स डील इट देयर. एंड ट्रिग्वे लाई का भी हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अभी हम ये किसकी बात कर रहे हैं? प्रेसिडेंट की. ये याद रखना. ठीक है, ठीक है. सो हम सेक्रेटरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं. मूविंग अहेड, हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? एज आई सेड, अब हम बात कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल की. ए. वॉल्कन बॉस्कर, बी. अब्दुल्ला शाहिद, सी. ट्रिग्वे लाई या फिर डी. एंटोनियो गटरेस. सो द राइट आंसर नाउ वुड बी एंटोनियो गटरेस, जो कि हैं हमारे सेक्रेटरी जनरल. ओके, शायद ये 24 तक के लिए हैं. एक बार चेक कर लेना. आई डोंट लाइक रिमेंबर, लाइक 24 तक आई थिंक ये हैं. ठीक है, तो ये जो है हमारे जो है करंट सेक्रेटरी जनरल हैं. और ये कितने ईयर के टेन्योर के लिए बनते हैं? 5 ईयर्स के टेन्योर के लिए बनते हैं. इनको नॉमिनेट कौन करता है? नॉमिनेट करते हैं हमारे सिक्योरिटी काउंसिल इनको. ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल इनको नॉमिनेट करते हैं. और अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि अपॉइंट कौन करता है और नॉमिनेट कौन करता है. सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली जो है अपॉइंट करती है. कितने ईयर्स की टेन्योर के लिए? 5 ईयर्स के टेन्योर के लिए. एंड इसमें और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. लेट्स मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 5. UN General Assembly adopted a resolution to declare 2023 as a International Year of Antivirus, International Post-COVID Year, International Year of Millets या फिर International Year of Stagnation. So the right answer would be International Year of Millet. Why is it important now? Because this resolution was sponsored by India and 70 other countries. तो India एक इसका प्रायर या फिर एक सुपीरियर स्पॉन्सर था, तो इस वजह से हम लोगों को इसको याद रखना है. क्या? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट. कौन सा? 2023. ओके जी, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा ठीक है, बिफोर मूविंग अहेड थोड़ा सा एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. 193 जो है इसके मेंबर्स हैं यूएन जनरल असेंबली के, राइट? तो ये जो 193 मेंबर्स हैं, यही कोई ना कोई भी रेजोल्यूशन अगर पास करनी होती है तो इन सबको मेजॉरिटी में पास करनी होती है. ठीक है, तो अगर मेजॉरिटी मेंबर्स पास कर देते कोई रेजोल्यूशन, देन एनी रेजोल्यूशन कम्स इनटू बीइंग. Okay, question 6. Which of the following day was marked for the first time by UN
ऑन जून 18, 2022। देखो अब सारे डेज याद करना इज़ नॉट पॉसिबल, बट कोई ऐसा दिन जो अभी रिसेंटली बनाना हमने शुरू किया है ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ यूएन, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके हिसाब से जून 18, 2022 को कौन सा डे ऐसा है जो यूएन ने डिक्लेयर किया फॉर द फर्स्ट टाइम? योर ऑप्शंस आर इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच, वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसी डे, इंटरनेशनल डिजिटल सैनिटाइजेशन डे, या फिर इंटरनेशनल एंटी पैथोजन वीक। सो द राइट आंसर वुड बी इंटरनेशनल डे ऑफ काउंटरिंग हेट स्पीच। ठीक है जी, ये डिक्लेयर हुआ है एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। ओके, सो विद दैट इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी? रोल ऑफ एजुकेशन टू एड्रेस रूट कॉज ऑफ हेट स्पीच। Role of education to address root cause of hate speech. Okay. Moving ahead to next question. Question 7. The current permanent representative of India in UN is. Your options are A. Ruchira Kamboj, B. T.S. Trimurti, C. Subramaniam Jaishankar, या फिर D. Nota. अब इसका आंसर है रुचिरा कंबोज। इसको टी.एस. तिरुमूर्ति मत मार्क करके आना, यू माइट गेट कंफ्यूज, बट द राइट आंसर इज रुचिरा कंबोज, क्योंकि ये प्रेजेंट अपॉइंटेड है एंड कब अपॉइंट हुई थी ये? 1 जुलाई 2022 में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। एंड जयशंकर जी कौन है? हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर। वेरी राइट। एंड विद दिस लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लेड रेजोल्यूशन, ऐसी कौन सी इंडिया के द्वारा जो लेड की गई थी एक ऐसी रेजोल्यूशन जिसने एनकरेज किया किसको? यूएन को, कि जिससे कि वो अपनी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अगर वो देता है तो वो ऑफिशियल के साथ साथ नॉन ऑफिशियल लैंग्वेजेस में भी प्रोवाइड करे टू द पीपल। एंड इसमें इन्होंने इंक्लूड किया हिंदी, बांग्ला एंड उर्दू। तो ऐसी कौन सी रेजोल्यूशन है, हमें ये बताना है। Your options are resolution on language and dialect, resolution on multilingualism, convention on bilingualism, या फिर convention on multilateral language wisdom. So the right answer would be resolution on multilingualism. ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर है रेजोल्यूशन ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म। एंड हमको ये भी चीज़ जानने की ज़रूरत है कि यूएन की लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दैट्स फ्रेस्का, FRESC एंड A। ठीक है, तो F से फ्रेंच, R से रशियन, E से इंग्लिश, S से स्पेनिश, C से चाइनीज़ एंड A से अरेबिक। ठीक है, तो ये हमारी जो है यूएन की लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा मतलब ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, इनके अंदर तो कम्युनिकेट करते हैं इन्फॉर्मेशन, बट इंडिया ने बोला कि जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, मतलब अनऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उनमें भी उनको कम्युनिकेट करना चाहिए, बिकॉज दैट वुड बी रीचिंग टू द मासेस। Okay, moving ahead. Question 9. International Day of Epidemic Preparedness as declared by UN is on. UN ने डिक्लेयर किया क्या? एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस का डे। वो कब होता है? 27 दिसंबर को। ओके, 27 दिसंबर को डिक्लेयर किया है इन्होंने क्या? एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे। तो ये भी पूछ सकते हैं कि 27 दिसंबर को कौन सा डे डिक्लेयर किया है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे कब डिक्लेयर किया है। तो ये याद होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स। क्वेश्चन 10, विच कंट्री हैज बीन अप्रूव्ड टू रिप्लेस किसको? रशिया को ऑन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो ह्यूमन राइट काउंसिल में रशिया को कौन रिप्लेस करने वाला है? चेक रिपब्लिक। तो हम सबको पता है रशिया एंड यूक्रेन का जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके रिस्पेक्ट में रशिया को सस्पेंड कर दिया फ्रॉम यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल। एंड आफ्टर दीज एलिगेशन जो उसने सोल्जर्स ने यूक्रेन में किया उसको उसका पार्ट नहीं रहने दिया गया। फॉर द यूएन ह्यूमन राइट डे कब बनाया जाता है? दैट्स ऑन 10 दिसंबर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जो भी रिसेंटली हुआ उस रिस्पेक्ट में। एंड फॉर द इट वॉज डिक्लेयर्ड एंड साइंड ऑन, जो इसकी डिक्लेरेशन थी वो साइन कब हुई थी? 10 दिसंबर 1948 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द इंडिया री इलेक्ट हो गया यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए एंड क्या टर्म है? 2022 से 2024 तक। ओके, मूविंग अहेड। क्वेश्चन 11, द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक Trend 2022 report has been released by which of the following organization? So that has been released by
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू हैव नॉट read about it, then you can reach out to my previous video on United Nations, and I had made 2-3 videos on United Nations जिसमें आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अच्छे से मिल जाएगा. इसके रिस्पेक्ट में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बहुत अच्छे से आप लोगों को आनी चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन थी जो बीइंग में आई थी, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. Who has recently become India's first UN Development Program Youth Climate Champion? के कौन बना है? फिर ऑप्शंस आर सलमान खान, प्राजक्ता कोहली, भुवन बाम या फिर अमिताभ बच्चन. एंड द राइट आंसर इज प्राजक्ता कोहली. एंड आई थिंक इस बार एग्जाम में ज़रूर आना चाहिए, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडियाज़ फर्स्ट UN डेवलपमेंट प्रोग्राम चैम्पियन है ये. ठीक है, सो प्राजक्ता कोहली को कौन नहीं जानता, सबको पता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस टाइम. ओके, मूविंग अहेड. Question 13. In June 2022, 10 global initiatives, 10 ऐसे global initiatives थे which were honored with prestigious UN Service Award for their role and efforts in helping the world recover better from COVID-19. उन्होंने efforts डाले कि वर्ल्ड को एक रिकवरी में हेल्प मिले फ्रॉम कोविड-19. विच वन बिलोंग टू इंडिया? उनमें से एक था जो इंडियन था आउट ऑफ दोज 10. कौन सा था? सर ऑप्शंस आर मेडिकल किट ड्रोन्स, विक्टिम सपोर्ट एम्बुलेंस, एमओ बस या फिर पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर. तो राइट आंसर इज एमओ बस. ये आप लोगों को पता होगा, ज़्यादातर लोगों को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. क्वेश्चन 14. Which is not one of the 4 countries which are added to BRICS New Development Bank in 2021? ये इंपॉर्टेंट है बहुत. सो हम लोग सबको पता है कि ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है. ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. अब जो 4 और कंट्रीज जो इसके न्यू डेवलपमेंट बैंक के रिस्पेक्ट में ऐड हुई हैं, विच आर इजिप्ट, राइट, देन बांग्लादेश, देन उरुग्वे, URUGUAY, ओके, एंड UAE. ओके, सो युगांडा जो है वो इसकी एक और कंट्री की तरह नहीं ऐड हुई है. तो इस पर्सपेक्ट में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द 4 कंट्रीज वर एडेड, या फिर इनमें से कौन सी वो 4 कंट्रीज नहीं है. सो यू नीड टू नो इट. ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं DULLB में यूजुअली. एंड वेट अ सेकेंड, लेट मी शो यू इट्स टेबल. And yes, here is the list of all the countries which are there in BRICS New Development Bank. So you need to remember these. So guys, here we are done with United Nations current affairs, and further, if you are still worried about the current affairs with respect to competitive exams like DULLB, तो current affairs के ये important heads हैं, इनको मिस मत करना. If you have not done these, then first do these, and further current affairs के बारे में ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है. If you have studied, if you have read as far as possible, मतलब ईच मंथ के हमने करंट अफेयर्स कर लिए हैं, फर्दर हमने MCQs भी प्रैक्टिस कर लिए हैं ईच मंथ के रिस्पेक्ट में, देन आई थिंक यू आर गुड टू गो. सो गाइज, एक चीज और, मोस्ट ऑफ यू जिन्होंने मेरे को मैसेज किया, दे आर वरीड अबाउट अगर DULLB में एडमिशन नहीं हुआ तो. ये तो कहाँ से आ रहे हैं दिमाग में, आ कहाँ से रहा है ये बताओ मुझे. मतलब प्लान भी रखने को आपको किसी ने बोला? नहीं बोला ना. वाई आर यू वरीड अबाउट इट? If you have worked really hard, rather than wasting your time over this question, wandering around, you need to focus upon your preparation, revision, focus upon कि क्या चीज़ हमारी रह गई है उसको wind up करो, जितनी बार हो सकता है उतनी बार रिवाइज करो, जितने प्रैक्टिस हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस करो. ये तो वाला क्वेश्चन ना भूल जाओ. You need to get in, you have to get in, you will get in. Okay? तो इस टाइप का एटीट्यूड रखोगे ना तो you would sure get in. Trust me. तो ये चीज मत सोचो अगर नहीं आया तो, आ ही जाएगा पक्का. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम. डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स. अपना 100% देना, अपना बेस्ट देना, तोड़ के आना, फोड़ के आना, एंड आके अपना रिजल्ट एज इन शेयर जरूर करना कि कैसा एग्जाम गया. आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू, एंड आई होप सबका बहुत अच्छा जाएगा एंड एवरी वन ऑफ यू वुड गेट इन. ऑल द वेरी बेस्ट गाइज. दोबारा से मैं बोल रही हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट. डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स. जस्ट इतना करके आना कि कल को घर पे अगर आओ एंड यू वुड स्टैंड बिफोर योर मिरर, यू वुड बी एबल टू से व्हाटसोएवर योर नेम इज, I am really, really proud of you. You did really hard and now you can
enjoy. So that kind of attitude I want from you. ये तो वाला attitude नहीं आया तो आएगा. So bye bye.